ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਐਕਸਪਰਟ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਮਨ ਜੀ। ਯੋਗੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਂਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम भी हम एडमिंटन डायरी के प्रोग्राम में हम मिले थे। हाँ जी। और उस मुलाकात के बाद पंजाबी नेशनल टीवी ने और हमने ये एक विचार बनाया कि हम ये योगा का जो हमारा प्रोग्राम है और इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएं, और ताकि लगातार हमारे जो दर्शक हैं एडमिंटन के, उनको योगा की एक सही नॉलेज मिलती रहे। और स्पेशली इस कोविड के टाइम पे वो अपने घर बैठे अपनी सेहत को योगा के द्वारा संभाल सकते हैं। जी बिल्कुल जी, जिवें योगी जी दस रहे कि इस वारी हालात बदले हुए ने, फिजिकली क्लासेस लगाउणियां गवर्नमेंट दी इंस्ट्रक्शंस दे अकॉर्डिंगली पॉसिबल नहीं हैगियां, सो ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ फेस करने पै जाते हैं। जी बिल्कुल फिरमान जी, इसमें ऐसा है कि जो भी योगा टीचर YouTube पे हैं, WhatsApp पे हैं, Facebook पे हैं, वो अपनी तरफ से आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट उसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि वो आपको फिजिकली आपको चेक नहीं कर सकते जी कि आपने जो बताया है आपके स्टूडेंट या जो योगी हैं वो वही चीज उसी टेक्निक के साथ कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस होता है, आप ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है, कब आपको ब्रीथ आउट करना है, कब ब्रीदिंग करना है, एंगल क्या होना चाहिए आपका, वो चीजें गलत होने की वजह से वो फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। बिल्कुल योगी जी, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ये एक बड़ा ही अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं एडमिंटन के सभी दर्शकों तक पहुंच पाऊं, और जो भी हमारे गुरुओं ने, सीनियर्स ने जो हमें ज्ञान दिया है वो आप तक पहुंचा पाऊं। हम जैसा कि पंजाबी नेशनल टीवी के मैनेजमेंट से बात हुई है, आप खुद योगा करते हैं, हाँ जी, आप भी एक योगी हैं, तो आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करके हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचे हैं कि हम हफ्ते में 2 बार, ठीक है जी, एक योगा का प्रोग्राम हम लेके आया करेंगे अपने दर्शकों के लिए, जो कि सैटरडे और संडे को जी हुआ करेगा। और एग्जैक्ट टाइम हम अपने दर्शकों को बता देंगे। बेसिकली वो सुबह ही होगा ताकि आप आराम से नींद से उठें और फ्रेश होके आप योगा के लिए बैठ जाएं। बिल्कुल जी, साडे दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ
ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ डिफरेंस होएगा या सेम तरह का योगा ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ जी? मैंने सोचा है कि इसमें हम दोनों दिन अलग अलग किस्म का योगा कराएंगे जी। जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे को हम एक जनरल फिटनेस के लिए जो हथा योगा है हमारा, ठीक है, उस पे हम ध्यान देंगे। हथा योगा बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हेल्दी हैं, जिनको कोई किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और अपनी फिटनेस को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने माइंड को उन्होंने और हेल्दी करना है और फिट बनाना है, तो हथा योगा वो उन लोगों के लिए है। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਰ फिट रख सकते। जी बिल्कुल। कौन सा आसन किस तरह से करना है, क्या एंगल होना चाहिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे जी। और हमारा जो संडे को हमने एपिसोड सोचा है वो हमारा थेरेपेटिक योगा के ऊपर होगा। ठीक है जी। थेरेपेटिक योगा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि योगा को हम जब यूज करते हैं ट्रीटमेंट और हीलिंग के लिए, तो वो थेरेपेटिक योगा कहलाता है। ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो लोग जिनको कोई भी एलर्जीज है, हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे डिस्क की पेन है, थायराइड है, डायबिटीज है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन है, नेक पेन है, यस, तो उन लोगों के लिए हम हर संडे को अच्छा हम एक डिजीज को पकड़ेंगे। सपोज जैसे थायराइड है, थायराइड कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका यौगिक थेरेपेटिक योगा में कौन कौन से आसन हैं, उनको कैसे करते हैं, वो हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है। और हम उनके लिए कुछ अपने होमवर्क भी देंगे दर्शकों को कि आपने ये घर पे बैठ के ये चीजें इतने इतने इंटरवल पे और इतने रेपिटेशन से आपने करनी है। तो वो धीरे धीरे अभी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एडमिंटन में जहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे थायराइड के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। थायराइड के साथ हमने वेट लॉस भी किया है। और माताओं बहनों में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थायराइड ना तो उनका वेट कम होने देता है, और बहनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये करता है कि वो आपको बच्चा कंसीव नहीं करने देता। सो थायराइड एक गंभीर बीमारी है। तो इसी तरह हम हर संडे को एक अलग हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर अपने एपिसोड को कंसंट्रेट करेंगे। आई विल लाइक डेफिनेटली एप्रीशिएट यू जी। बहुत अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀਅਮ ਆ ਕਿ a sound mind lives in a sound body। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਲਾਈਫ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? मंजीत जी देखिए, आपने एक बात कही कि हेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम भी है। हाँ जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपको मेंटली हेल्दी होना, साउंड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है फिजिकल एस्पेक्ट से भी जी। तो रही बात योगा आपको इस एक्सपेक्ट में आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने में कैसे हेल्प करता है, तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दे आर बोथ इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल। आप उसमें से एक के किनारे को खींचोगे तो दूसरा उसके साथ खींचा रहेगा।
जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि आप फिजिकली आप टायर्ड हो, आपने बहुत काम किया है, आपकी बॉडी टायर्ड है, तो आपको गुस्सा जल्दी आएगा जी, है ना। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाओगे, चिड़चिड़ापन आ जाता है। इरिटेट होने लगोगे, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, और आप कोशिश करोगे कि आपसे कोई बात ना करे, आप बस रिलैक्स करो। बिल्कुल, ठीक है, तो आप फिजिकली टायर्ड हो, उसकी वजह से आपका साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो चेंज हो रहा है। यस, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, आप का कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, हाँ जी, है ना, आप दुखी हो, या आपके दिमाग में कुछ ओवर थिंकिंग है, हाँ जी, तो आप उस दिन नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी भी थोड़ी सी लेथार्जिक है, हाँ जी, लाउजी है, वो रिएक्ट स्लो करती है, उसकी एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो दिस शोज दैट आवर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड फिजिकल एस्पेक्ट, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड। बिल्कुल, तो अगर हमें अपनी साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को ठीक रखना है, माइंड को हेल्दी रखना है, तो हमें अपनी बॉडी पे काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो वो माइंड को अट्रैक्ट करेगी, माइंड भी उसके पीछे एक अच्छे से बिहेव करेगा। डेफिनेटली। और खास करके ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਿੰਦਾ। जी, और अगर आप फिजिकल आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ हमारे प्राणायाम हैं जो एंटी स्ट्रेस हैं, भ्रामरी उनमें से एक है जी। अगर आप वो चीजें ट्राई करते हैं तो ना सिर्फ आपका माइंड बल्कि आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, क्योंकि आपकी बॉडी हाँ जी, चलती तो आपके माइंड के पीछे ही है। बिल्कुल, है ना, जो भी नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, जैसा मैसेज भेजेंगे बॉडी रिएक्ट करेगी। बिल्कुल। इफ यू हैव ए पीसफुल माइंड, डेफिनेटली यू विल हैव ए पीसफुल एंड हेल्दी ਬੋਡੀ। ਯੋਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਵੈਂਚਰ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਕਲਪਾ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ जी। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। मंजीत जी, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम है जो मैं अपने लिए हर साल करता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने अभी सोचा कि मैं एक बार फिर अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लूँ, रिजुविनेट कर लूँ। कुछ फास्टिंग है, कुछ इसमें हर्बल डाइट्स हैं उनके थ्रू। तो बातों ही बातों में मैंने कुछ लोगों के साथ, डॉक्टर मिनिंदर जी हैं, उनके साथ डिस्कशन किया, तो उन्होंने कहा कि योगी जी हम भी आपके साथ करेंगे, क्योंकि जनरली फास्टिंग नहीं हो पाती है जी। तो अगर इकट्ठे करेंगे तो हो जाएगा। और धीरे धीरे करके वो पूरा एक बड़ा ग्रुप बन गया है, जिसमें आज की डेट में यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, सऊदी अरेबिया से, इंडिया से और बहुत सारे लोग कनाडा से, है ना जी, उसमें जुड़ गए हैं। तो एक बड़ा ग्रुप बन गया है। कल्पा डाइट बताने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि कल्पा डाइट है वो एक पार्ट है नेचुरोपैथी का जी। नेचुरोपैथी एक जैसे आपने एलोपैथी सुना है, होम्योपैथी सुना है, ऐसे ही एक नेचुरोपैथी है। और बीइंग ए नेचुरोपैथ मैं ये मानता हूँ कि नेचुरोपैथी इज़ मदर ऑफ ऑल पैथीज जी। क्योंकि जब संसार में, दुनिया में कोई भी पैथी नहीं थी, तब भी नेचर थी। बिल्कुल, नेचर ने ही हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं जिनसे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेट भर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं जी। ठीक है, आज भले ही हमें कोई चीज़ आप फार्मेसी से मिलती हो या ड्रग्स कंपनी से मिलती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें एक नेचर का पार्टिसिपेशन रहता है जी। नेचुरोपैथी में हम ये मानते हैं कि जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, वही 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी को एक परमानेंट क्योर और हेल्थ दे सकते हैं जी।
उन 5 तत्वों में आपका जल है, पानी, वायु, अर्थ, मिट्टी, हाँ जी, हाँ, आग और आकाश। ठीक है जी। ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो बड़ी सीधी सी बात है, जिन 5 तत्वों से आप बने हो, हाँ जी, वही 5 तत्व आपको एक परमानेंट क्योर दे सकते हैं जी। ठीक है। तो नेचुरोपैथी का ही एक जो आकाश तत्व है वो सबसे बड़ा तत्व माना जाता है जी। आग भी बड़ा तत्व है, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है, बट आकाश तत्व सबसे बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी आकाश ने संभाली हुई है जी, अपनी एक धुरी पे घूमती रहती है ना। जितने और ग्रह हैं वो भी आकाश ने संभाले हुए हैं। पूरी गैलेक्सीज और ना जाने कितनी और गैलेक्सियां आकाश ने संभाली हुई हैं। ठीक है। तो आकाश तत्व सबसे बड़ा तत्व है और आकाश तत्व हमारे अंदर काम कब करता है? वो हमारे अंदर काम तब करता है जब हम फास्टिंग करते हैं जी। और नेचुरोपैथी में फास्टिंग के 3 तरीके हैं, लॉन्ग टर्म फास्टिंग, मीडियम टर्म फास्टिंग, शॉर्ट टर्म फास्टिंग जी। शॉर्ट टर्म फास्टिंग में हम 1 दिन का व्रत, 2 दिन का व्रत फास्टिंग कर सकते हैं। मीडियम फास्टिंग में हम कई बार 1 हफ्ते से 10 दिन की फास्टिंग आ जाती है। तो जो लॉन्ग टर्म फास्टिंग होती है वो 30 दिन से लेके 40 दिन के बीच में आती है, तो उसको हम कल्पा बोलते हैं। ठीक है जी। ये एक्चुअली डाइट कम फास्टिंग ज़्यादा है जी। तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, आजकल आपको पता है कि हर चीज़ में केमिकल है। हाँ जी। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं जिनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और ना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उनको डाइजेस्ट कर पाता है। बिल्कुल। वो हमारी बॉडी से निकलते नहीं हैं, है ना। उन सारे फॉरेन टॉक्सिस को, फॉरेन पार्टिकल्स को निकालने के लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। हम एक पर्टिकुलर डाइट लेते हैं जो कि नेचर रॉ फूड्स होते हैं, नेचुरल फूड्स होते हैं। उसके थ्रू हम अपनी बॉडी में से उन फॉरेन पार्टिकल्स को निकालते हैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ weight loss ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ जुड़ चुके हैं जी? मंजीत जी, ये प्रोग्राम हमने अभी 1 दिन पहले ही स्टार्ट किया था जी। और इसमें 1 दिन में ही करीबन 70 लोग, 70 पीपल अराउंड द ग्लोब जुड़ चुके हैं और जिसमें से डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर अमरिंदर शर्मा हैं, डॉक्टर सोडी हैं, डॉक्टर सांगवान हैं, डॉक्टर लोहान हैं, वो इसमें जुड़ चुके हैं। इंडिया से कुछ IAS ऑफिसर हैं हमारे और US से, ऑस्ट्रेलिया से डिग्नेटरीज हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। इसमें माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं। इसमें एक ही दिन में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उम्मीद ये है कि हम इसको और सक्सेस बनाएंगे। ताही मैं कह सीगा जी, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ डिटॉक्सीफाई करिए और अपना वेट लूज करने का ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ। जी हाँ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मैं ये बताना चाहूँगा मंजीत जी, इसका एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। हम अपनी नॉर्मल डाइट से एक कल्पा डाइट पे, जो फास्टिंग डाइट भी कहलाती है, एकदम से नहीं जा सकते। उसमें हम क्रैश डाइट नहीं करते हैं। नेचुरल तरीके से धीरे धीरे अपनी डाइट को कम करते हुए हम फास्टिंग पे लेके आते हैं और फिर हम उस डाइट पे वेट करते हैं, रहते हैं कुछ दिनों के लिए और ऐसे ही धीरे धीरे हम उस डाइट को कल्पा डाइट से नॉर्मल डाइट की तरफ लेके आते हैं। बिल्कुल। मेरा वैसे अगला क्वेश्चन भी यही सीगा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 40 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਜੀ ਔਰ 6 28 6 3 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਰੱਖੇ ਨੇ,
वो थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करो तुसीं। हमारे जो पहले 6 दिन हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन के नहीं होते हैं जी। वो सिर्फ एक प्रिपरेशन होती है कि हम अपनी बॉडी को उतना तैयार कर लें कि वो डिटॉक्स डाइट के लिए तैयार हो पाए और वो उसमें आपको एक नेचुरल तरीके से हम उसको वहाँ तक लेके आते हैं। तो पहले 6 दिन हैं, जैसे 2 दिन के लिए मैंने आपका पहले 2 दिन मैंने आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच जो आप नॉर्मल करते हैं आप करते रहें। मैंने सिर्फ आपका एक मील जो डिनर है रात का वो रिप्लेस कर दिया जी। तीसरे दिन आपका लंच रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरी डाइट के साथ, और ऐसे ही 4 दिन 5 दिन बाद आपके तीनों मील ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो रिप्लेस हो जाएंगे जी। तो वो एक नेचुरल तरीका है, सही तरीका है आप एक नॉर्मल डाइट से डिटॉक्स डाइट पे जाने का। 28 दिन तक कंटिन्यूअस हम उस डिटॉक्स डाइट को फॉलो करेंगे जी। उसमें फास्टिंग होगी। उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं, विटामिन्स है, मिनरल्स है, सोडियम है, ओमेगा 3 है, फाइबर है, वो हमें उतना मिलता रहे जितने हमारी बॉडी की ज़रूरत है। तो कहने मतलब जिन्ने भी मिनरल्स या विटामिन्स सानू जरूरी है वो इस डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल होंगे क्योंकि ये एक डिटॉक्सिफिकेशन डाइट है जी। स्टार्विंग नहीं है। भूखे नहीं रहना ਤੁਸੀਂ, भूखे नहीं रहना, सारी डाइट ਨੂੰ रिप्लेस ਕੀਤਾ जाएगा। हाँ, लेकिन उतना भी नहीं खाना कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन हो ही ना पाए। जी। तो 28 दिन के बाद हम फिर दोबारा से उस डिटॉक्सिफिकेशन डाइट से, कल्पा डाइट से 6 दिन के अंदर धीरे 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 आपको एक नॉर्मल डाइट पे लेके आए हैं विच इज़ ए नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? मैं ये समझता हूँ इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जो छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसको ये ना करें क्योंकि उनको अभी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपको एनर्जी चाहिए क्योंकि 21 साल तक 22 साल तक आपकी बॉडी ग्रोथ होती है। हाँ जी, वैसे भी इस उम्र च एनर्जी बहुत होती है, भजदे नठदे जी हाँ, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है, तो आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए जी। तो उसके बाद कुछ लोग हैं जो ओल्ड एज में भी वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ये डाइट स्टार्ट करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर और अपने फिजिशियन से बात करें। अगर उनको कोई एलर्जी है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कुछ भी नहीं है तो भी डॉक्टर की सलाह से, आप डॉक्टर के पास आपकी पूरी हेल्थ हिस्ट्री होती है, है ना, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, तो एक बार उनसे सलाह जरूर लें। अगर आपको डॉक्टर अलाउ करता है तो दिस इज़ द बेस्ट डाइट। वाकई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही सीगा योगी जी कि अगर किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ फिर ही ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने अपने ग्रुप में भी एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है सभी हमारे मेंबर्स के लिए कि आपको कोई एलर्जी है, हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी आप प्रिकॉशंस के लिए एक बार अपने फैमिली डॉक्टर, अपने फिजिशियन से एक बार सजेशन ज़रूर लें। जो जो इसमें खाने का सामान, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो मैंने उनको पहले ही बता दिया है ताकि वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकें कि इसमें हम ये खाने वाले हैं, इससे हमें कोई एलर्जी तो नहीं होगी, है ना। तो वो एक सही तरीका है मेरे हिसाब से। योगी जी नॉर्मली ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕਲਪਾ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? नहीं मंजीत जी, इसकी हमने कोई फ़ीस नहीं रखी हुई है। अच्छा जी। लेकिन हमने अपने सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करी है कि वो हमें $1 पर डे के हिसाब से डोनेशन दें जी। $1 आपकी एक दिन की कॉफ़ी से भी आई थिंक कम है। आजकल कॉफ़ी भी $2 से कम नहीं मिलती, तो वो $1 जो हमें, $1 का मतलब हो गया 40 दिन के $40 जी, है ना। एक मेंबर हमें $40 देगा, तो उस पैसे से हम
हम जो हमारे एडमिंटन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, हमने ये डिसाइड किया है उस पैसे से जो होमलेस पीपल हैं यहाँ पे हम उनकी हेल्प करेंगे और साथ में एक नेचुरोपैथी सेंटर यहाँ पे डेवलप करने में हम वो पैसे का यूज़ करेंगे। ਵਾਕਈ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨੇ, ਹੈਲਪਲੈਸ ਨੇ, ਹੋਮਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। जी मेरे ख्याल से जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर हैं बहुत डिग्नेटरीज़ हैं अपने आप में, सब अच्छे घरों से हैं, अच्छा पॉजिटिव माइंड है। तो मुझे लगता है कि जब भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है तो इट्स आवर टाइम, मैं अपने लिए भी ये बात कर रहा हूँ, इट्स आवर टाइम कि हम वो चीज़ किसी न किसी ढंग से समाज को वापस करें। ਯੋਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। मेरा नाम योगी अशोक राज है, मेरा फ़ोन नंबर है 7802425171। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख के, तो ज़रूर आपका नाम नोट हो जाएगा। और इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हम जब आगे स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ज़रूर उसमें शामिल करना चाहेंगे। ਰੀਅਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਯੋਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ Thank you, ਆਉਂਦੇ ਜੇ sir. ਬੜਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। थैंक यू जी, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद मनजीत जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਯੋਗੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਔਰ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।